पंजाबी जागरण एसोसिएट स्पॉन्सर ऑफ प्राइम डिबेट हुण तुहाडे शहर विच। Hello and welcome to Prime. Let's begin with the headlines. "14-day-long strike at Maruti's Manesar plant called off following a tripartite agreement between the management, workers and Haryana government." Another twist in Mirchpur caste violence case. Rohini court acquits 7 of the 15 finally accused by it for last year's gruesome incident. Armed Forces Special Powers Act and Disturbed Areas Act to be revoked from some areas of Jammu and Kashmir, says Chief Minister Omar Abdullah. And Haryana Congress leaders meet to analyse Hisar by-election loss. Jaiprakash seeks intervention of AICC President. In our news in detail, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah today said the controversial Armed Forces Special Powers Act and Disturbed Areas Act will be withdrawn from some areas in the state within the next few days. Omar was speaking at a function to pay tribute to the fallen police personnel on the occasion of the Police Martyrs Commemoration Day. बड़ी शिकायत लोगों की ये रही है कि हालात तो ठीक हुए, लेकिन खराब हालात की वजह से जो कानून यहाँ पे लागू किए गए थे उन कानूनों को हटाने का काम जो है यहाँ पे हुआ नहीं। आज मैं बड़ी खुशी से कहना चाहता हूं कि शायद वक्त आ गया है और हालात अब हमें इस बात की इजाजत दे रही है कि हम रियासत के कुछ इलाकों से उन कानूनों को हटाने का काम कर सकते हैं जिनको यहाँ पे मिलिटेंसी के शुरुआत में लागू किया गया था। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे इस रियासत में हालात और साजगार होंगे, जैसे जैसे इस रियासत में और ज्यादा अमन जो है वो बहाल होगा, जैसे जैसे मिलिटेंसी का असर रसूख और ज्यादा कम होता जाएगा, वैसे वैसे मैं और मेरे काबिना के साथी जो हैं कोalition गवर्नमेंट का ये जो हमारा वादा है इसको पूरा करते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इस रियासत के मुख्तलिफ कोनों से इन काले कानूनों को हम यहाँ से हटाने का काम करेंगे। And reacting to Chief Minister Omar Abdullah's statement, Mirwaiz Umar Farooq, chairman of the moderate faction of the Hurriyat Conference, said the Armed Forces Special Powers Act should be revoked from across the valley. Mirwaiz said the Hurriyat Conference has always demanded revocation of this draconian law from the state. Our stand has been very clear since a long time. In fact, when the Hurriyat met the Prime Minister last in 2005, we have been demanding the removal of the Armed Forces Special Powers Act, the Public Safety Act and other draconian measures and laws. So we feel that it should be done in totality, not in a district-wise manner. We feel that the time is ripe for some bold initiative from New Delhi. If really we need to move forward and address the Kashmir problem, this is high time that the people of Kashmir should feel some relief. To discuss this issue, we have in our studios Brigadier V.K. Sharma, who has had a long experience of dealing with insurgency in Jammu and Kashmir. We are also joined on the phone line by Khurram Parvez, a Srinagar-based human rights activist who is presently in Delhi. Also joining us from Srinagar on phone is political commentator Mohammad Saeed Malik. Parvez ji, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, as a human rights activist, आप राज्य सरकार के इस इनिशिएटिव को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, the issue is that Omar Abdullah साहब खुद भी कह रहे हैं, he is on record having said that this is a draconian law. अगर ये ड्रैकोनियन लॉ है तो आप इसको पार्शियली रिवोक करके क्या कह रहे हैं? द मैसेज यू आर गिविंग इज दैट दिस ड्रैकोनियन लॉ वुड बी एप्लीकेबल टू अदर पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर माइनस सम डिस्ट्रिक्ट्स, मे बी प्रोबेबली श्रीनगर एंड मे बी जम्मू सिटी. सो दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग इशू. वी आर सेइंग दैट कि आप जब रिवोक करना चाहते हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, इट हैज टू बी रिवोक्ड थ्रू आउट बिकॉज इट इज अ ड्रैकोनियन प्रोविजन ऑफ लॉ. और दूसरा ये one of the issues which is a very problematic issue in this is that
हम लोगों को ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट इज अलाउिंग द आर्मी एंड सीआरपीएफ एंड बीएसएफ टू क्विट वायलेंस. Recently, on commenting on the attacks on Atim Anna Hazare members, the Prime Minister of India said that violence has no place in democracy. Violence, you are allowing the violence in Jammu and Kashmir. Are you saying that in Jammu and Kashmir there is no place for democracy? जी प्रवेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास वापस आते हैं. ब्रिगेडियर शर्मा, इस फैसले से राज्य का जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर किस तरह का असर देखने को मिल सकता है? सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर साहब के ऑप्टिमिज्म की दाद देनी पड़ेगी कि मेरे को भरोसा है कि इनको कुछ ना कुछ इंडिकेटर मिले होंगे जी. यहाँ जो की प्लेयर्स हैं, सबसे पहले पाकिस्तान लीजिए जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है. हो सकता है, हमें नहीं पता, चीफ मिनिस्टर साहब को कोई अश्योरेंस मिला हो कि इन्फिल्ट्रेशन बंद हो जाएगी. दूसरे हुर्रियत हैं, उन्होंने भी कुछ अश्योरेंस दिया होगा कि हम भी आपके साथ हैं. तीसरा मिलिटेंट है जी, कि उन्होंने भी कोई अश्योरेंस दिया कि हम अब गलत हरकत करना बंद कर देंगे, हम आपके साथ हैं. अगर ये सब हालत हमें नहीं मालूम और चीफ मिनिस्टर साहब को मालूम है, हो सकता है इंटरलोक्यूटर्स की जो रिपोर्ट है जी, उसमें कुछ ऐसा इनको संदेश दिया गया हो कि हालत सुधर रही है, तब तो ये बहुत अच्छी बात है. अगर ये कोई ऐसे इंडिकेशन इनको नहीं मिले हैं, जब हालत इतनी बुरी है, इस कानून के होते हुए भी अगर हमारे से सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही है जी, तो फिर तो गलत बात होगी. बिल्कुल. अगर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ये बोल रहे हैं कि हम AFSPA को डाइल्यूट नहीं कर रहे, अगर हालत इतनी सुधर गई है तो आर्मी को निकालो वहां से बाहर, आप पुलिस को बाहर निकालो. पुलिस डू इट्स नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज. अगर ऐसे हालत सुधर रखी, हमें नहीं मालूम, हो सकता है चीफ मिनिस्टर साहब को ज्यादा मालूम है इसके बारे में, क्योंकि वो पॉलिटिकल एंगल से देख रहे हैं, मैं सिर्फ आर्मी के एंगल से देख रहा हूँ. मगर आपने अभी पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन की जो बात कही है, आपके मुताबिक आपको लगता है कि इस के बाद जो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन है वो कम होगी या बढ़ सकती है? अभी देखिए, अगर समय देखते हो, अभी तो विंटर शुरू हो गया है, पासेस बंद हो गए हैं जी. इन्फिल्ट्रेशन का जो अंदेशा है वो कम से कम होता जाएगा. दूसरा, मैं एक चीज और देखता हूं, जैसे कि वजीरिस्तान की तरफ अमेरिका ने प्रेशर डाला है और पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप भी कार्रवाई करें, तो इनकी पूरी की पूरी जो इनका पूरा तवज्जुह होगा वो उस तरफ होगा, हमारी तरफ कम होगा. कुछ अश्योरेंस इस तरीके का हो कि पाकिस्तान को कोई इन्फिल्ट्रेशन करने की कोई हालात ही नहीं है उनके पास, या कोई इससे कोई मौका ही नहीं है, तब तो बात ठीक है. लेकिन मैं अपने एक एज ए आर्मी मैन मैं कहता हूं कि क्या आप पाकिस्तान पे भरोसा कर सकते हो? जो अमेरिकन को धोखा दे सकते हैं, जब डबल गेम खेलते हैं, इट्स लाइक रनिंग विद द हेयर्स एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, वो हमारे से भी ऐसा काम कर सकते हैं. मेरे ख्याल से सिर्फ विंटर के टाइम, क्योंकि मौसम नेचुरल कंडीशन के कारण इन्फिल्ट्रेशन कम होगी, लेकिन उसके बाद हमें तो देखना पड़ेगा कि ये अपना वचन निभाते हैं कि नहीं निभाते हैं. जी, हमारे साथ पॉलिटिकल कमेंटेटर सैयद मलिक फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, हम उनसे उनकी राय जानना चाहेंगे. मिस्टर मलिक, इस निर्णय के पीछे आपके मुताबिक उमर अब्दुल्ला की क्या पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं? देखिए, पॉलिटिकल कंपल्शन नहीं मैं समझता हूँ ये, बल्कि अगर ये हो रहा है बहुत देर से हो रहा है. खुद उमर अब्दुल्ला ने 3 साल पहले जिस वक्त वो पावर में आए थे ये कमिटमेंट दी थी कि ये कानून, बल्कि इलेक्शन प्रॉमिस उनका ये था, ये खत्म किया जाएगा. उसके साउंड बेसिस हैं मेरे हिसाब से. आई डोंट एग्री विद ब्रिगेडियर साहब, वो सेज इट इज फॉर इन्फिल्ट्रेशन डील करने के लिए ये कानून नहीं है. ये इंटरनल इंसर्जेंसी के खिलाफ था और वो कंट्रोल हो गई है. इन्फिल्ट्रेशन तो इससे बहुत पहले होती है, 47 से होती रही है और होती रहेगी. इन्फिल्ट्रेशन कोई कानून आप लगाए, इससे बंद नहीं हुई, इन्फिल्ट्रेशन जारी है. इन्फिल्ट्रेशन के साथ वो बॉर्डर पर है, दिस डील्स विद द सिचुएशन विद इन द बॉर्डर्स. ये इट इज इन रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल लॉ एंड. ये क्या है? इट इफेक्टिवली सस्पेंड्स रूल ऑफ लॉ इन द स्टेट और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉज लाते हैं वेयर योर राइट्स आर सस्पेंडेड. इट्स अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड फॉर द सिविलियन पॉपुलेशन. इट हैज नथिंग टू डू विद इन्फिल्ट्रेशन. मिस्टर मलिक, यहाँ पर ब्रिगेडियर शर्मा कुछ कहना चाहेंगे. मैं तो ये नहीं कहा कि इन्फिल्ट्रेशन जो है, हमने कहा सिर्फ 4 की प्लेयर्स हैं इस काम में. नहीं, वो पाकिस्तान भी है, वो भी देखिए, बात सुनिए, देखिए इस साल आप इंडिकेटर क्या है? सबसे बड़ा इंडिकेटर है इस साल यहाँ रिकॉर्ड टूरिस्ट आया, कुछ नहीं हुआ. इस साल यहाँ इतने लाखों लोगों ने अमरनाथ यात्रा की, एक इंसिडेंट नहीं हुआ है.
what does it indicate? It indicates situation is normal. बाकी क्राइम होता रहेगा, क्या क्राइम पिछले कुछ का होल्डर वो किस स्टेट में आज नहीं है, मुझे दिखाइए किस स्टेट में नहीं है। अगर वो यार्ड स्टिक है, देन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया क्वालिफाइज टू बी पुट अंडर डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट एंड आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। मेरी राय है कि ऑब्जेक्टिवली सिचुएशन को देखा जाए, मैं तो मेरा मसला डिफरेंट है, आई लुक एट इट डिफरेंटली। It took Omar Abdullah 3 years to say from demanding this to say that it is likely to be lifted from some states. अभी मुझे मेरी जैसे शर्मा साहब ने भी ये कहा, I have an information that army is not yet fully convinced कि हम उसको ओके करें। अभी 3-4 दिन पहले जो लोकल कोर कमांडर है उन्होंने ये कहा था कि we are not even discussed this thing in the local unified command जो स्टेट लेवल के जिसको चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं, वहां डिस्कस भी नहीं हुआ ऑब्वियसली। और जैसे खुर्रम परवेज बिल्कुल सही कह रहे थे, इट मेक्स मॉकरी ऑफ लिफ्टिंग द होल थिंग। आप किसी एरिया से उठाएंगे, उस एरिया में ये कानून है, सेम स्टेट में इस एरिया में ये कानून है, अगर आप उधर पकड़े गए तो आप उस कानून के साथ डील होगा, अगर ये कानून, सो इट मेक्स नो सेंस। और आई थिंक ऑल ऑब्जेक्टिव कंडीशंस डिमांड दैट दिस बी लिफ्टेड लॉक स्टॉक एंड बैरल। जी मिस्टर मलिक, आपने अपनी बात रखी, अब जानना चाहेंगे ब्रिगेडियर शर्मा इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं फिर से कहूंगा, मलिक साहब ने मेरी बात को समझा नहीं है। मैंने कहा जो की प्लेयर्स हैं जी, वो है पाकिस्तान है, हुर्रियत है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है इसकी है। अगर इन सबको कुछ ना कुछ इंडिकेटर होना चाहिए। इन्फिल्ट्रेशन पहले भी होती थी, इन्फिल्ट्रेशन अभी भी होती रहेगी, इन्फिल्ट्रेशन तो होती रहेगी, ये तो पाकिस्तान का मैं बोलूंगा एक धर्म है, वो इन्फिल्ट्रेशन तो करनी है। लेकिन मेरा ये कहना है, जिन्होंने बोला है कि इस बार टूरिस्ट बहुत आए हैं, बिल्कुल बात मानने की है। अमरनाथ यात्रा में भी बहुत पिलग्रिम आए हैं, बहुत दर्शन किए उन्होंने, सब कुछ रहा है। लेकिन इससे पहले अगर 3 साल देखे जाएं, 2008, 2009, 2010, आपको पता है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, यह पहला साल है जो शांतिपूर्वक निकला है। इसको इतनी जल्दी मान लेना कि हालत सुधर गए हैं, वो बहुत जल्दबाजी की बात होगी। एक साल इसको और देखें, और उसके बाद देखने के बाद लेट मी कंप्लीट। मिस्टर मलिक अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके पास अभी वापस आ रहा हूं। मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया था, मैं अपनी बात कर रहा हूं, उसके बाद इनको बोलने दीजिए। ये बहुत जल्दी होगा कि अगर आप बिल्कुल ही, अगर हालत इतनी सुधर गई हो, आर्मी को कोई इंटरेस्ट नहीं है वहां रहने का। आर्मी का जो बेसिक काम है वो एक्सटर्नल थ्रेट से है। अगर चीफ मिनिस्टर साहब समझते हैं कि हालत बिल्कुल सुधर गई है, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं कि एएफएसपीए को डाइल्यूट नहीं कर रहे, वो एएफएसपीए को निकाल रहे हैं। जैसे वो सोचते हैं कि जगह जगह से निकाल सकते हैं, जरूर निकालिए। अगर हालत सुधर गई है, जैसे कि पॉलिटिकल कमेंट मलिक साहब सोचते हैं और समझते हैं, आर्मी को निकाल दीजिए, आर्मी को बॉर्डर पे लगाइए, वहां इन्फिल्ट्रेशन रोकेंगे और एक्सटर्नल थ्रेट के लिए तैयारी करेंगे जी। अगर ये सोचते हैं ये हालत बिल्कुल सुधर गई है, पर अगर आप मेरा विचार पूछ रहे हैं, ये पहला साल जो शांतिपूर्वक निकला है, अभी और 1-2 साल देखने की जरूरत है। उसके बाद अगर सिचुएशन ठीक रहती है तो आस्ते आस्ते इस एक्ट को, ये आफ्टर ऑल आर्मी इसको नहीं लागू करती है, लागू तो स्टेट गवर्नमेंट ही करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और आर्मी तो उनका हुक्म मानती है। अगर वो सोचते हैं कि सिचुएशन बिल्कुल ठीक है तो निकालिए, हमें कोई एतराज नहीं, इससे आर्मी वालों को कोई एतराज नहीं होगा। उनको बड़ी खुशी होगी कि हम अपने आर्मी से छोड़कर बाहर वाले जो दुश्मन एक्सटर्नल थ्रेट से हम लड़ें और उसको तैयारी करें। राइट, इसी मुद्दे पे मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। हमारे साथ खुर्रम परवेज जी जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आफ्सपा और डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट राज्य के कुछ हिस्सों से हटाए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि इससे बाकी हिस्सों में मानवाधिकार का हनन जारी रहेगा?